فاطمہ شیرازی ہوم میڈ پروڈکٹ استعمال کرنے سے 1 منتھ میں 10 kg تک آپ اپنا وزن کم کر سکتے ہیں۔ سب سے کم دام میں ویٹ لاس کا طریقہ ہمارے یہاں موجود ہے، وہ بھی نو سائیڈ افیکٹ، نو ڈائٹ، نو ایکسرسائز کے ساتھ۔ آج ہی کانٹیکٹ کریں فاطمہ شیرازی ہوم میڈ پروڈکٹ سے اور اپنے آپ کو خوبصورت بنائیں۔ فاطمہ شیرازی ہوم میڈ پروڈکٹ، گولڈن ہیٹس کالونی، پلر نمبر 213، راجندر نگر، حیدرآباد، 8142877400۔ چیف منسٹر تلنگانہ ریونت ریڈی کو ایک خاتون نے آواز دیتے ہوئے کہا، ریونت انا آپ سے بات کرنی ہے۔ آواز سن کر وہ فوری اس خاتون کے پاس پہنچ گئے۔ یہ واقعہ حیدرآباد کی یشودا ہاسپٹل میں پیش آیا۔ چیف منسٹر سابق چیف منسٹر KCR کی عیادت کے لیے ہاسپٹل پہنچے تو اس وقت ایک خاتون نے انہیں دیکھ کر آواز دی، ریونت بھیا آپ سے بات کرنی ہے۔ چیف منسٹر نے ہاتھ کے اشارے سے خاتون کو وہیں رکنے کو کہا اور خود ان کے پاس پہنچ کر ان کے مسئلے سے واقفیت حاصل کی۔ خاتون نے چیف منسٹر کو بتایا کہ ان کی بچی ہاسپٹل میں زیر علاج ہے اور علاج کے لیے کافی رقم خرچ ہو رہی ہیں، لہٰذا مدد کی جائے۔ چیف منسٹر نے عہدیداروں کو فوری اس مسئلے کی یکسوئی کی ہدایت دی۔ یہ ویڈیو سوشل میڈیا پر وائرل ہو رہا ہے۔ عالمہ ڈاکٹر نوہیرا شیخ آل انڈیا مہیلا امپاورمنٹ پارٹی کی کل ہند صدر اور ایک بزنس ٹائکون شخصیت کی حامل کو مہاراشٹر کے اورنگ آباد میں ٹائمز ایگزمپلری ایوارڈ شو میں خواتین کو بااختیار بنانے کی کامیابیوں کے لیے اعزاز سے نوازا گیا۔ عالمہ ڈاکٹر نوہیرا شیخ کو عورتوں کے امپاورمنٹ اور بہبود کے میدان میں اپنی شاندار کارکردگی کے لیے اعزاز سے نوازا گیا۔ ڈاکٹر شیخ جو ایک کثیر جہتی شخصیت اور ایک کاروباری اور سیاستدان کے طور پر اپنے کردار کے لیے مشہور ہے نے لوگوں کے دلوں پر ایک دائمی اثر ڈالا ہے۔ ہیرا گروپ کی ایگزیکٹو چیئرپرسن اور بانیہ کے طور پر انہوں نے کاروباری ڈھانچے کو نمایاں طور پر تشکیل دیا ہے۔ مزید برآں آل انڈیا مہیلا امپاورمنٹ پارٹی کی بانیہ اور موجودہ صدر کے طور پر ان کا کردار خواتین کو بااختیار بنانے اور سیاسی وکالت میں شامل ہونے کے لیے ان کے عزم کو واضح کرتا ہے۔ گورنمنٹ ڈگری کالج بودھن میں اردو ڈے تقریب اور ایک روزہ ورکشاپ کا ڈاکٹر عبدالقوی تلنگانہ یونیورسٹی اور تبسم شاہین اسسٹنٹ پروفیسر اکنامکس گورنمنٹ ڈگری کالج نظام آباد کی نگرانی میں عمل میں لایا گیا۔ اردو ڈے کے زیر اہتمام طلباء و طالبات کے لیے بہت سے پروگرامز کے منعقد کیے گئے، جن میں حمد نعت شریف، علامہ اقبال کی غزلیں، تقرری مقابلہ، تحریری مقابلہ، خطوط نویسی، بیت بازی کے علاوہ مہندی ڈیزائن، کیرم بورڈ، بیڈمنٹن جیسے پروگرام شامل ہیں۔ بعد ازاں ان پروگرامز کا آغاز حمد و نعت شریف کے ذریعے کیا گیا۔ ان پروگرامز میں کثیر تعداد میں طلباء و طالبات نے بڑھ چڑھ کر حصہ لیتے ہوئے کامیابی حاصل کی۔ اس موقع پر ڈاکٹر ناہیدہ بیگم اسسٹنٹ پروفیسر گورنمنٹ ڈگری کالج بودھن نے طلباء و طالبات سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ کسی قوم کی تعمیر میں اس کے نوجوانوں کا بڑا کردار ہوتا ہے۔ در حقیقت نوجوانی کا دور وہ دور ہوتا ہے جب انسان کے ارادے، جذبے اور توانائی اپنے عروج پر ہوتی ہیں۔ اگر ان جذبوں اور توانائی سے قوم و ملک فائدہ نہ اٹھا سکے تو یہ انتہائی بڑا نقصان ہے۔ ضرورت اب صرف اس بات کی ہے کہ ہمارے سامنے ایک واضح خاکہ اور منصوبہ بندی ہو کہ ہمارے نوجوانوں کو اپنی صلاحیتوں کو استعمال کرتے ہوئے کیسے ملک و قوم کی تعمیر و ترقی میں اپنا کردار ادا کرنا ہے۔
ये काम हुकूमत, वालिदैन, असातिज़ा और खुद नौजवानों सबको मिलकर करना है। इस हवाले से सबसे बुनियादी चीज बेहतरीन तालीम का हुसूल है। बेहतरीन तालीम का मतलब महंगे और मशहूर तालीमी इदारों में तालीम हासिल करना नहीं है, बल्कि अपने वसाइल और इस्तेदाद के मुताबिक आप जहाँ भी तालीम हासिल कर रहे हों तो एक एक लम्हा सीखने के अमल में इस्तेमाल करें। ऐसा इल्म जो आपको बेहतरीन मुसलमान और अच्छा इंसान बनाए और आपकी सलाहियतों को उभारने में माविन साबित हो। अगर आप में लिखने, पढ़ने और बोलने की, समझने की बेहतरीन इस्तेदा होगी, तभी आप मुल्की मामलात में अपना किरदार बेहतर तौर पर अदा कर सकेंगे। अपनी ज़िंदगी में नज़्म व ज़ब्त और अपने काम में हुस्न और तरतीब भी ज़रूर पैदा करनी होगी। आप कितनी ही मेहनत से कोई काम करें, लेकिन अगर इसमें बेतरतीबी होगी तो नतीजा वो नहीं हासिल होगा जो इतनी मेहनत के बाद हासिल होना चाहिए। मजीद उन्होंने कहा कि इस मुल्क की तामीर और तरक्की में भी आप ही को सबसे अहम किरदार अदा करना है। तरक्की उन अक़वाम का मुक़द्दर बनती है जिनके नौजवानों में आगे बढ़ने की लगन और तड़प होती है। अगर नस्ल नौ कौमी मुफादात को ज़ाती मुफादात पर तरजीह देते हुए तामीर मिलत की राह पर आने वाली हर रुकावट के सामने सीसा पलाई हुई दीवार बन जाए और मुल्क में हर बुराई को अच्छाई में तब्दील करने की ठान ले, तो यकीन कीजिए कि तामीर कौम की राह में आने वाली हर रुकावट दरिया के तिनके की तरह बह जाएगी। लिहाजा उन्होंने तमाम ही तलबा और तालिबात को अच्छी मेहनत लगन के साथ आगे बढ़ने की नसीहत की। साथ ही इस मौके पर उन्होंने उर्दू डे के ज़ेर एहतमाम मुनक़्क़द करदा मुकाबलों में कामयाब होने वाले तलबा और तालिबात को मुबारकबाद पेश की। बारज़ा मुकाबलों में कामयाब तलबा और तालिबात में इनामात की तक़सीम अमल में लाई गई। मुल्क की कई रियासतों में दर्जे हरारत में कमी आई है, जिसके बाद सर्दी मजीद बढ़ गई है। राजधानी दिल्ली में भी यही सूरत हाल है। यहाँ मंगल 12 दिसंबर मौसम का सर्द तरीन दिन था। जम्मू कश्मीर में पारा सिफर से कई डिग्री नीचे पहुंच गया है। महकमे मौसमियात के मुताबिक शुमाली हिंद के दर्जे हरारत में 15 दिसंबर तक मजीद कमी वाक़ होगी। महकमे मौसमियात की पेशन गोई के मुताबिक राजधानी दिल्ली में 12 से 17 सितंबर के दरमियान कम से कम दर्जे हरारत 6 से 8 डिग्री सेल्सियस के दरमियान रहेगा। इसके साथ अगर आज यानी मंगल 12 दिसंबर के मौसम की बात करें तो दिल्ली एनसीआर में ज्यादा से ज्यादा दर्जे हरारत 23 डिग्री रहने का इम्कान है, जबकि कम से कम दर्जे हरारत 8 डिग्री रहने का इम्कान है। महकमे मौसमियात का कहना है कि दर्जे हरारत में मजीद कमी होगी और सुबह के वक्त धुंध पड़ने का इम्कान है। IMD के मुताबिक पीर को दारुल हुकूमत दिल्ली में मौसम की सर्द तरीन सुबह थी। महकमे के मुताबिक कम से कम पारा 6.5 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया, जो सीजन की औसत दर्जे हरारत से 3 डिग्री सेंटीग्रेड कम है। दारुल हुकूमत में गुज़िश्ता चंद दिनों से दर्जे हरारत में कमी रिकॉर्ड की गई है। शहर का कम से कम दर्जे हरारत 8.5 डिग्री सेल्सियस और इतवार को 8.3 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया था। महकमे मौसमियात के मुताबिक जम्मू कश्मीर के श्रीनगर में पारा -4.4 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। इसके अलावा गुलमर्ग में पारा -4.2 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया है। गवर्नर केरला आरिफ मोहम्मद खान के काफिले को रोकते हुए हमले की कोशिश की गई। आरिफ मोहम्मद खान जब अपनी गाड़ी में जा रहे थे तो बाज नौजवान नारे लगाते हुए उनकी गाड़ी के सामने आ गए। गाड़ी उस वक्त बर्क रफ्तारी से गुजर रही थी। आरिफ मोहम्मद खान ने अपनी गाड़ी को रुकवा दी और बाहर निकलकर कहा कि अगर उनमें हिम्मत है तो आकर उन पर हमला करें। वो उन नौजवानों की तरफ आगे बढ़ रहे थे। केरला के गवर्नर आरिफ मोहम्मद खान ने दावा किया है कि चीफ मिनिस्टर पिनाराई विजयन के हिदायत पर गुंडों के जरिए उन्हें जिस्मानी तौर पर चोट पहुंचाने की कोशिश की गई है। तिरुवनंतपुरम से कल शाम जब गवर्नर खान दिल्ली जाने वाली परवाज में सवार होने के लिए हवाई अड्डे पर जा रहे थे कि ये वाकया पेश आया। सफा गारमेंट्स में फेस्टिव एंड वेडिंग सीजन्स के लिए शेरवानी, ब्लेजर्स और डिजाइनर कुर्तास की बेहतरीन कलेक्शन। दुल्हे की शेरवानी हो या शेरवानी हो बारातियों की, 25% डिस्काउंट ऑन ऑल वेडिंग कलेक्शन। डिजाइनर शेरवानी, ओपन शेरवानी, रेडीमेड ब्लेजर्स जैसे वेलवेट बेस, जैक्वार्ड, टक्सीडो की लाजवाब कलेक्शन रीजनेबल रेट्स पर। शेरवानी, ब्लेजर्स जोधपुरी की स्टार्टिंग रेंज सिर्फ 2000 रुपए। हर 5000 की खरीदारी पर 1000 रुपए का डिजाइनर कुर्ता बिल्कुल मुफ्त। 10 शेरवानी के ऑर्डर पे 1 शेरवानी बिल्कुल मुफ्त। 20% डिस्काउंट ऑन रेडीमेड, 10% डिस्काउंट ऑन फैब्रिक्स। सफा गारमेंट्स, टोली चौकी, एक्स रोड, हैदराबाद।
कांग्रेस लीडर दिग्विजय सिंह ने जम्मू और कश्मीर के 2 बिलों पर राज्यसभा में बहस के दौरान कहा कि मरकज की बीजेपी हुकूमत पर सख्त नुक्ताचीनी करते हुए उन्होंने कहा इसने जम्मू और कश्मीर के हसास मामले को इंतहाई गैर हसास तरीके से निपटाया है और जम्मू और कश्मीर के लोग पिछले 4 सालों से नुमाइंदगी के बगैर हैं। दिग्विजय सिंह ने यह भी कहा है कि मुकामी लोगों की मर्जी को नजरअंदाज किया जा रहा है और हुकूमत रियासत के बाहर से लाए गए एहलकारों के जरिए आमिराना अंदाज में काम कर रही है। सिंह ने जम्मू कश्मीर के 2 बिलों पर राज्यसभा में बहस के दौरान ये तबसरा किया। दिग्विजय सिंह ने मजीद कहा मरकजी वजीर दाखिला अमित शाह और पूरी बीजेपी अपने अपने तरीके से तारीख को मस्क करने की कोशिश करती हैं, लेकिन आज अगर जम्मू और कश्मीर और खास कर वादी कश्मीर हमारा है तो इसका सारा क्रेडिट पंडित जवाहरलाल नेहरू जी और शेख अब्दुल्ला को जाता है। कांग्रेस के रहनुमा ने कहा कि जम्मू और कश्मीर का मसला हसास है, लेकिन आज रियासत में खुद मुख्तारी है और वहां के बाशिंदों से कोई मशावरत नहीं की जा रही है। उनके जज्बात को नजरअंदाज किया जा रहा है। कांग्रेस लीडर ने कहा है कि जम्मू और कश्मीर की खुसूसी दफा को अचानक छीन लिया गया और अब हुकूमत इसे बहाल करने की तजवीज कर रही है। उन्होंने ये भी कहा है कि जम्मू और कश्मीर का मामला हसास है और हमें वहाँ के हालात को समझने की जरूरत है। सुप्रीम कोर्ट ने आर्टिकल 370 की मनसूखी से मुतालिक अहम फैसला सुनाया है। सुप्रीम कोर्ट की चीफ जस्टिस पर मुश्तमिल बेंच ने आर्टिकल 370 की मनसूखी करने मरकज के फैसले की मदाफियत की है। ताहम इस फैसले पर आईनी बेंच में इख्तिलाफ पाया गया। सुप्रीम कोर्ट की चीफ जस्टिस ने कहा कि जब कश्मीर का हिंदुस्तान में शामिल किया गया था तो कोई खुसूसी हैसियत नहीं थी, इसलिए कश्मीर के लिए कोई अलग खुद मुख्तारी नहीं है। उन्होंने कहा कि कश्मीर का खुसूसी आइन सिर्फ सहूलत के लिए है। चीफ जस्टिस DY चंद्रचूड़ की सरबराही में 5 रुकनी आईनी बेंच ने वाजे किया कि वो जम्मू और कश्मीर के मसले पर सदर के ऐलान में मदाखिलत नहीं कर सकता। सुप्रीम कोर्ट ने जम्मू और कश्मीर की खुसूसी हैसियत को मनसूख करते हुए मरकजी हुकूमत की तरफ से 2019 में आर्टिकल 370 की मनसूखी को चैलेंज करने वाली अर्जी पर यह फैसला सुनाया है। उसने ये नतीजा अखज़ किया कि वो जम्मू कश्मीर के मामले में मरकजी हुकूमत के फैसले में मदाखिलत नहीं कर सकती। दरख्वास्त गुजारों के दलाइल को मुस्तरद कर दिया गया। ये वाजे किया गया है कि दूसरी रियासतों को जम्मू और कश्मीर के आईनी हुकूक में कोई खास बात नहीं है। वाज़ेह है कि 5 अगस्त 2019 को मरकजी हुकूमत ने आर्टिकल 370 को मनसूख कर दिया। रियासत को 2 मरकजी ज़ेरे इंतजाम इलाकों में तकसीम किया गया है। मुकामी सियासी जमातों ने इसकी शदीद मुखालिफत की है। मरकज के फैसले को चैलेंज करते हुए सुप्रीम कोर्ट में अर्जियां दाखिल की गई। अदालत ने काफी देर तक दरख्वास्तों पर समाअत के बाद आज हतमी फैसला सुना दिया है। अमेरिकी इंतजामिया ने ऐलान किया है कि अमेरिकी सदर जो बाइडन ने अपने यूक्रेनी हममनसब व्लादिमीर ज़ेलेंस्की को मंगल के रोज व्हाइट हाउस में आने की दावत दी ताकि यूक्रेन की फौरी ज़रूरियात पर बातचीत की जा सके। ये दावत एक ऐसे वक्त में दी गई है जब अमेरिकी कांग्रेसी की जानिब से यूक्रेन को फौरी तौर पर दरकार फौजी इमदाद की मंजूरी रोक दी गई है। अमेरिकी सदारती तर्जुमान केरियन जैन पेयर ने एक बयान में कहा है कि दोनों सुदूर रूसी हमले का मुकाबला करने के लिए यूक्रेनी की फौरी ज़रूरियात और इस नाजुक लम्हे में अमेरिकी हिमायत जारी रखने की अहमियत पर तबादला ख्याल करेंगे। उन्होंने मजीद कहा कि बाइडेन और ज़ेलेंस्की के दरमियान मुलाकात एक नाजुक लम्हे पर हो रही है क्योंकि रूस भारी मिसाइलों और ड्रोन से यूक्रेन के खिलाफ मुहिम तेज कर रहा है। यूक्रेन के ऐवान सदर ने एक बयान में कहा है कि इस इजलास में यूक्रेन और अमेरिका के दरमियान मजीद दिफाई ताउन, खास तौर पर हथियारों और फिजाई दिफाई निज़ाम की तैयारी के मुश्तरका मंसूबों के जरिए बाहमी ताउन की कोशिशों पर तवज्जो मरकूज की जाएगी। गजा पट्टी पर इस्राएली फौज की वहशियाना और नंगी जारहियत का 66वां दिन है। इस्राएली फौज ने गजा में मुख्तलिफ मुकामात पर वहशियाना बमबारी में घरों के अंदर मौजूद शहरियों पर उनके मकानात को गिरा दिया, जिसके नतीजे में मुतादिद फ़लस्तीनी शहीद और ज़ख्मी हो गए। इसराइली फ़ौज की तरफ से इज्तिमाई क़त्ल-ए-आम और नंगी जारहियत के जराइम की वजह से गजा में इंसानी इल्मिया रोनुमा हो चुका है और क़ाबिज़ फ़ौज एक एक घर में घुसकर वहाँ मौजूद लोगों का कत्ल कर रही हैं। दूसरी जानिब फ़लस्तीनी मज़ाहमती क़ुव्वतों ने दुश्मन के खिलाफ पूरी क़ुव्वत से मज़ाहमत जारी रखी हुई हैं और मुतादिद मुक़ामात पर दुश्मन फ़ौज को ज़ख्म चाटने पर मजबूर किया गया है। खान यूनुस में अबसान के मुकाम पर इस्राएली फ़ौज ने अलकरमी स्कूल में एक शहरी को गोली मार दी। खान यूनुस के वसत में इस्राएली फ़ौज ने 2 अलग अलग मुकामात पर बम गिराए जिनमें बड़े पैमाने पर जानी नुकसान की इत्तलात है। इस्राएली फ़ौज की तरफ से मुसल्लत किए गए मुहासिरे की वजह से मकानों के मलबे तले दबे लोगों तक पहुँचने में दुश्वारी का सामना है। वसता गजा में क़ाबिज़ फ़ौज ने शाहरा सलाहुद्दीन और फ़लस्तीनियों के एक ग्रुप पर फायरिंग की, जिसके नतीजे में मुतादिद शहरी
शहीद और जख्मी हुए हैं। मीडिया ज़राए के मुताबिक खान यूनुस के नासिर अस्पताल में 6 शहदा की लाशें लाई गई हैं। इसराइली फौज के तोपखाने से शहीद होने वाले फ़लस्तीनियों की शिनाख्त मुंतसिर मूसा, अबू मुस्तफ़ा, मोहम्मद अब्दुल रज़्ज़ाक़ तिबिश, अदनान रस्मी खदी, इस्लाम मोहम्मद, अबू मुस्तफ़ा खलील उमर, अबू इमरान और मोहम्मद मुसन्निफ सलमान के नामों से की गई हैं। जर्मनटन सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, डॉक्टर मीर जवाद जार खान, सीनियर एक्सपीरियंस्ड ऑर्थोपेडिक सर्जन, बोन फ्रैक्चर, जॉइंट रिप्लेसमेंट, हिप रिप्लेसमेंट और स्पाइन सर्जरी कामयाबी से अंजाम दे रहे हैं। इसके अलावा न्यूरो सर्जरी, कार्डियोलॉजी, गायनेकोलॉजी, डेंटल, जनरल मेडिसिन, डायलिसिस और फिजियोथेरेपी जैसे शोबाजात में इंतहाई कामयाबी के साथ वाजिबी फीस में इलाज किया जा रहा है। शेयरिंग और प्राइवेट रूम्स, अस्पताल में 24 घंटे MRI, CT स्कैन, 2D डिजिटल एक्सरे, अल्ट्रासाउंड, ऑपरेशन थिएटर, ICU और लैब की सहूलत दस्तयाब है। आपकी उम्मीदों के ऐन मुताबिक जर्मनटन सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, पिलर नंबर 150, अतापुर, हैदराबाद। तंत्र मंत्र यंत्र के सम्राट బాబా ఆజం ఖాన్ బెంగాలీ 100% లాభం గ్యారెంటీతో పాటు కొన్ని కారణాల వల్ల మా వారి కంపెనీ బంద్ అయింది. పిల్లల స్కూలు, ఇంటి ఖర్చులు ఏం చెయ్యాలో అర్థం కాలేదు. అప్పుడు మేమిద్దరం బాబా ఆజం ఖాన్ బెంగాలీని కలిసాం. తర్వాత కొన్ని రోజులకే మా వారి కంపెనీ తిరిగి ఓపెన్ అయింది. ఇక మా జీవితంలో అన్ని సంతోషాలే. నాకు చాలా కలలున్నాయి, కానీ జేబులో డబ్బులు లేవు. ఇంజనీరింగ్ చదివాను, కానీ జాబ్ లేదు. ఆ సమయంలో నాకేం చేయాలో అర్థం కాలేదు. అప్పుడు నా ఫ్రెండ్ ఒకడు బాబా ఆజం ఖాన్ బెంగాలీ గురించి నాకు చెప్పాడు. ఆయన్ని కలిసిన తర్వాత నేను ఒక కన్స్ట్రక్షన్ కంపెనీలో ఇంజనీర్ అయ్యాను. మేమిద్దరం ఒకరినొకరు ప్రేమించుకున్నాం. కాని మా ఇద్దరి తరపు పెద్దవాళ్లు మా పెళ్లి ఒప్పుకోలేదు. మేము బాబా ఆజం ఖాన్ బెంగాలీ గారిని కలిసాం. ఆ తర్వాత మా పెద్దలు మా పెళ్లి ఒప్పుకున్నారు. ఉద్యోగం, వ్యాపారం, ఇంటి పోరు, ఆర్థిక సమస్యలు, ప్రేమ వివాహం, చేతబడి చేయబడిన వారు, భార్యాభర్తల మధ్య గొడవలు, పెళ్లిలో ఆటంకాలు, సవతిపోరు, శత్రుబాధ, విదేశీయానం, సంతాన ప్రాప్తి, ముట్కార్ని వశీకరణం స్పెషలిస్ట్. నేను చేసిన పనిని ఎవరైనా సవాల్ చేస్తే వారికి నగదు బహుమతి. మా అడ్రస్ బాబా ఆజం ఖాన్ బెంగాలీ, మలక్పేట్, हैदराबाद। फोन नंबर 9573048697। अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो यहाँ पर रेड कलर का सब्सक्राइब बटन दिख रहा है, उसे क्लिक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही साथ बेल आइकन को भी क्लिक कीजिए, जिससे आपको ताज़ा अपडेट मिलती रहे।